Hello and welcome back to my channel, which is AMS MBBS lectures. In today's session, we are going to continue further. This is most probably the part 3 video of culture methods. So, इस वाले वीडियो में we are going to mainly discuss all about the colony morphology की बात करनी है. So far we have covered the first 3 topics in part 1, the 4th topic in the part 2, and the 5th topic. This is your part 3 in which we are going to cover the colony morphology. Up till the 4th step, we know that after incubation, we have to now check for something called as the colony morphology, matlab how the bacterial growth has occurred, and on that basis we have to make the conclusion that which organism is being isolated from the given specimen. Okay, so what all things, what all characteristics, what all factors you have to keep in picture or keep in mind while we are evaluating the colony morphology. So let's start with the topic, that is colony morphology. Now, under colony morphology, the first thing that we're going to look is something called as the size, shape, and consistency. Okay, that means whether it is dry, moist, or mucoid in appearance. कैसा appear करती है colony? ठीक है. Second thing that we're going to look for any color change. अगर हम लोग मेकॉन्ग की अगर use कर रहे, so we can get either a pink colony or we can get a pale colony. Pink colony क्या indicate करती है? That is the bacteria is a lactose fermenting bacteria. Pale colony क्या indicate करती है? That it is a non-lactose fermenter. Examples of lactose fermenters, we have Escherichia coli, and we also have something that is called as the Klebsiella. Okay, this is just a quick recap of again this thing. And if I go with the non-lactose fermenters, we can write the examples of Salmonella. Then we can also write the examples of Shigella. Alright, so this is just a quick recap of what we have already studied under the topic called as culture media. Video is there if you want to know the details of Mekong ki agars and all the different types of agars. Do refer that video. And apart from these two factors, the third thing, that is कुछ bacteria होती है guys, वो pigment produce करती है. ठीक है? Just for example, if I want to give you blue green color का pigment, Pseudomonas produce करती है. ठीक है? Then we also have something called as Staphylococcus aureus. S aureus की जो colonies होती है after incubation ना culture plate पर आपको golden yellow color की colonies देखने को मिलती है. Again next slide पे I have attached some images so that उसमें और clear हो जाएगी ये सारी चीजें. And lastly we can also appreciate something that is called as hemolysis. अब ये जो hemolysis की property होती है इसकी आने वाले slides में I'm going to cover all the 3 types of hemolysis, okay, with the definition and their explanation. ठीक है? So let's look at the images first of all. थोड़े बहुत से images I have attached over here. जैसे कि ये वाला है. This is an image showing something that is called as the Mekong's agar. कौन सा agar show कर रहा है ये? Mekong's agar is being highlighted. We again have these pink colored colonies and we have the pale colonies over here. Pink colonies का मतलब होता है lactose fermenters and the pale colonies का मतलब होता है non-lactose fermenters. And examples मैंने अभी आप लोग को discuss किए. दूसरा एग्जाम्पल, ऑल दीज ब्लूइश ग्रीन कलर का कॉलोनी देखने को मिलता है. तो दिस इज अगेन रिप्रेजेंटिंग योर सूडोमोनास के ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं. ब्लू ग्रीन पिगमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है इसके अंदर. डन. देन वी हैव द नेक्स्ट ओवर हियर, ये वाली कॉलोनीज. यहाँ पे कैसे आपको गोल्डन येलो कॉलोनीज देखने मिलते हैं. दिस इज स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का इमेज है ये, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑल दी गोल्डन येलो कॉलोनीज. तो दो जो है ये दोनों के दोनों, these two are representing all the different types of pigments shown by both. ठीक है? तो ये गोल्डन येलो पिगमेंट यहाँ पे जो जनरेट होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस का. ठीक है? देन वन मोर एग्जांपल आई हैव अटैच्ड ओवर हियर. लेट मी क्लीन दिस थिंग. हाँ, अब ये तीसरा एग्जाम्पल, सॉरी फोर्थ एग्जांपल जो है TC-based agar है, that is thiiosulfate citrate biosol sucrose agar. If you see these yellow colonies देखने मिल रहा है, TC बेस अगर पे yellow colonies देखने मिल रहे हैं, तो it is very much indicative. It is of your Vibrio cholera. And अगर आपको TC बेस पे सेम TC बेस पे आप लोग को black color की colonies देखने मिल रहे हैं, तो this is indicating this is Vibrio parahemolyticus. Vibrio parahemolyticus. ठीक है? So this is how you can कंक्लूड क्या कौन सा हम लोग का इन्फेक्शन हो रखा हुआ है यहाँ पर. तो दैट इज इट. थोड़े इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए, सारे फैक्टर्स डिस्क्राइब कर दिए. अब जो लास्ट फैक्टर हमने देखा था हेमोलिसिस, उसको डिटेल में करते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द डिटेल्स ऑफ हेमोलिसिस, अ क्विक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज, कभी भी हेमोलिसिस चेक करना है तो विच मीडियम आर यू यूजिंग, कौन सा मीडियम यूज करोगे. तो द आंसर इज
blood agar. कौन सा medium is used? तो we should remember it is the blood agar that we perform hemolysis on. ठीक है. Which type of medium is blood agar? तो you should know it is an enriched medium. It is an enriched medium. Again ये सारी details हम लोग ने culture media वाले वीडियो में करी है. If you haven't watched it, do watch it. Highly recommended. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई. Now the question is, what is never the mind. तो what is hemolysis? Hemolysis होता क्या है? क्या सारी बैक्टीरिया हेमोलिसिस शो करती है? द आंसर इज नो. नॉट ऑल दी बैक्टीरिया विल शो हेमोलिसिस. ठीक है, सारी बैक्टीरिया हेमोलिसिस शो नहीं करती गाइस. ओनली अ फ्यू बैक्टीरिया विल शो हेमोलिसिस. नाउ व्हाई few bacteria are showing the hemolysis? The answer is the enzyme, because they are capable of producing an enzyme. Which enzyme are they capable to produce? They can produce an enzyme called as the hemolysin. Hemolysin. And hemolysis का मतलब होता है, hemo is something that is indicating RBC and lysis का मतलब होता है something that is going to break. तो ऐसी बैक्टीरिया जो hemolysin enzyme produce करती है and they have the capability to break the RBCs, they are called as your hemolytic bacteria, and they will show the property of hemolysis onto the blood agar, which is an enriched media. ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत सा इसके जो रिटर्न फॉर्म में देखिए, कुछ बैक्टीरियाज होती है वो एंजाइम बनाती है जिसका नाम है हीमोलाइसिन एंजाइम. अब ये हीमोलाइसिन एंजाइम क्या करती है? इट विल लाइज द आरबीसी विच इज सराउंडिंग द कॉलोनी. ब्लड अगर पे जो आरबीसी प्रेजेंट होते हैं उसको तोड़ देती है ये वाली, एंड उसकी वजह से देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ जोन ऑफ हेमोलिसिस इज फॉर्म्ड अगेन अराउंड इट. तो दिस इज व्हाट इज हेमोलिसिस ऑल अबाउट. ठीक है, अब बात करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस. तो ओवरऑल देखा जाए तो हम लोग टाइप्स जब डिस्कस करेंगे तो देयर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस दैट आई वुड बी डिस्कसिंग. लेट मी शो यू. हेमोलिसिस की 3 टाइप. पहला वाला अल्फा हेमोलिसिस होता है. दूसरा टाइप जो है दैट इज बीटा हेमोलिसिस. देन वी हैव द गामा हेमोलिसिस. ठीक है, अल्फा हेमोलिसिस को हम पार्शियल भी बोलते हैं, बीटा हेमोलिसिस को कंप्लीट हेमोलिसिस भी कहते हैं, एंड गामा हेमोलिसिस इज सिंपली इंडिकेटिंग नो हेमोलिसिस. टाइप्स क्लियर हो गए यहाँ पर. अब इनको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, एक एक करके सबको समझते हैं. अब पार्शियल या तो अल्फा हेमोलिसिस की जब मैं बात करूँ, लुक एट द इमेज ओवर हियर. जितनी भी कॉलोनीज यहाँ पे आप देख सकते हो, जितनी भी कॉलोनीज यहाँ पे शो करी गई है, इतनी सारी जगह पे जो कॉलोनी शो करी गई है, हर एक कॉलोनी के ऊपर कैन यू सी समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने मिल रहा है. एवरीवेयर वी कैन सी सम ग्रीनिश डिस्कलरेशन. ठीक है, तो एक कहीं ना कहीं आपको ग्रीन कलर का डिस्कलरेशन देखने मिल रहा है थ्रू आउट द कॉलोनीज. तो दैट इज अगेन इंडिकेटिंग पार्शियल हेमोलिसिस. कहने का मतलब ये है, ऐसी बैक्टीरिया जो हीमोलाइसिन एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, एंड हीमोलाइसिन एंजाइम प्रोड्यूस करने के बाद आरबीसी को कैसे ब्रेक डाउन करेगी? पार्शियली ब्रेक डाउन करेगी. ठीक है, देयर इज पार्शियल लिसिस. जस्ट लुक एट द थिंग दैट इज रिटन ओवर हियर. पार्शियल क्लियरिंग होती है आरबीसीज की सराउंडिंग द कॉलोनीज ऑन द ब्लड अगर. पार्शियल क्लियरेंस होगा एंड उसकी वजह से ग्रीन डिस्कलरेशन देखने को मिलता है ऑन द सराउंडिंग मीडियम. That green discoloration, partial clearance, these are some indicating points towards alpha hemolysis. ठीक है, इसके अलावा the examples की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत सी. एंड हाँ, one more important thing that is RBCs की जो आउटलाइन होती है वो इंटैक्ट होती है, बिकॉज यहाँ पे पार्शियल क्लियरेंस होता है आरबीसी का. तो आरबीसी की जो आउटलाइन होती है दैट इज इंटैक्ट, वो नहीं यहाँ पे टूटती है. इट डज नॉट गेट्स डिसरप्टेड व्हाइल पार्शियल हेमोलिसिस. इधर तक स्टोरी क्लियर है हम लोगों को. थोड़े एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं. सो वी हैव विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड न्यूमोकोकस एज द 2 एग्जांपल्स. हाउ टू रिमेंबर? दैट इज वेरी सिंपल. ए, वी एंड पी. ए से याद आएगा दैट इज नथिंग बट योर अल्फा हेमोलिसिस है, एंड वी विल रिमाइंड यू ऑफ विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकाई एंड पी विल रिमाइंड यू ऑफ न्यूमोकोकस. ठीक है, so this is how I remember the examples. Then next type that is called as your complete or beta hemolysis. ठीक है, अब यहाँ पे complete hemolysis है, मतलब आरबीसी का आउटलाइन इंटैक्ट नहीं रहने वाला अभी. राइट, अब ये कैसे पहचानोगे आप? लोग एट द इमेज ओवर हियर. जो भी हमारी कॉलोनी है, जस्ट हाईलाइटिंग वन सिंगल कॉलोनी ओवर हियर. तो जितनी भी कॉलोनीज है, कॉलोनीज के आगे आजू बाजू कैन यू सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज दी जोन ऑफ, वैसे क्लियर जोन है यहाँ पे. तो कॉलोनीज के आजू बाजू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द क्लियर जोन. क्या देखने मिल रहा है? क्लियर जोन है. कहीं ना कहीं से एक ट्रांसपेरेंसी देखने मिल रही है अराउंड द कॉलोनी. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपेरेंसी. दैट इज वेरी मच इंडिकेटिंग कि कंप्लीट हेमोलिसिस हुआ है, कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ आरबीसीज का. क्लियर जोन या ट्रांसपेरेंसी देखने मिल रही है आजू बाजू, तो अगेन इट इज इंडिकेटिंग कि ये बीटा हेमोलिसिस की कंडीशन है यहाँ पर. ठीक है, सो लेट मी शो यू द सेम थिंग. देखो, जोन ऑफ कंप्लीट क्लियरेंस देखने को मिलता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली
यहाँ पे आप लोग को ये चीज दैट इज क्लियर या तो ट्रांसपेरेंट जोन देखने मिलता है सराउंडिंग द कॉलोनीज के आजू बाजू, ये जोन देखने को मिलेगा आप लोग को। एंड एग्जाम्पल्स देख लो यहाँ पर। So we have two examples of Staphylococcus aureus and we have the Streptococcus pyogenes. This was all about the complete or beta hemolysis. Last type की बात करूँ that is called as the no hemolysis or gamma hemolysis. ये ऐसा टाइप का हेमोलिसिस होता है जहाँ पे कोई कलर चेंज ही नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज हेमोलिसिस हुआ ही नहीं है ना, आरबीसी ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं है, तो कोई कलर चेंज होगा ही नहीं आजू बाजू में। देर इज नो कलर चेंज, दैट इज द मेन कैच पॉइंट ओवर हियर। नॉर्मल कॉलोनीज देखने मिलती है ब्लड अगार पे। एंड वन सिंगल एग्जांपल दैट यू शुड रिमेंबर, एंटेरोकोकस, वन सिंगल एग्जांपल फॉर गैमा हेमोलिसिस। एंड हियर इज द इमेज कंपेयरिंग द ऑल द थ्री टाइप्स ओवर हियर। अल्फा हेमोलिसिस की बात करूँ तो आपको एक ग्रीनिश डिस्कलरेशन देखने मिलेगा। बीटा हेमोलिसिस की बात करूँ तो आप लोगों को क्लियर जोन देखने को मिलता है। एंड गैमा हेमोलिसिस की बात करूँ तो कोई कलर चेंज ही देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। So that is the three important types and the examples. अब फटाफट से एक बार, तो ये तीन टाइप्स खत्म हो गए, अब ना फटाफट से एक बार इसको क्विकली रिकैप लेते हैं हेमोलिसिस का। तो हेमोलिसिस, समवन आस्क्ड यू हेमोलिसिस क्या है, तो यू कैन से देयर आर थ्री टाइप्स। अल्फा हेमोलिसिस, लेट मी चेंज द कलर। ओके, तो लेट्स क्विकली रिवाइज द होल थिंग। हेमोलिसिस की बात करें तो हेमोलिसिस जो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ हेमोलिसिस दैट वी हैव टू डिस्कस। फर्स्ट इज अल्फा हेमोलिसिस, सेकंड इज कॉल्ड एज बीटा एंड थर्ड इज कॉल्ड एज गैमा हेमोलिसिस। अल्फा हेमोलिसिस को हम लोग आल्सो कॉल्ड एज द पार्शियल हेमोलिसिस, है ना। देन वी हैव द बीटा हेमोलिसिस व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज द कंप्लीट हेमोलिसिस and gamma hemolysis also called as the no hemolysis. So this is the three types. First of all, alpha hemolysis की बात करें तो what is the color change that you can see? So we can see something called as the greenish discoloration. Beta या complete, तो there is something called as a clear zone, clear और a transparent zone देखने को मिलेगा हम लोगों को, right? And then we are going to talk about gamma. इसमें तो there is no color change, okay? No color चेंज इज सीन इन केस ऑफ दिस थिंग, तो कोई भी कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलने वाला, दैट इज गैमा हेमोलिसिस। ठीक है, अब एग्जांपल्स की बात करते हैं तो अल्फा में आई ऑलरेडी नो ए फॉर अल्फा एंड देन द टू एग्जांपल्स वी एंड पी। तो वी से याद आता है इट इज समथिंग कॉल्ड एज द विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस एंड वी हैव द न्यूमोकोकस। एंड देन बीटा और कंप्लीट हेमोलिसिस में क्लियर जोन देखने को मिलता है। एंड इसके अंदर वी हैव द टू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एक एग्जांपल होता है एंड देन वी हैव द स्ट्रेप्टोकोकस ओवर हियर। ओके, वी हैव द स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स एज द अनदर एग्जांपल। एंड लास्टली हमारे पास गैमा हेमोलिसिस, वन सिंगल एग्जांपल, नेवर फॉरगेट, एंड दैट इज योर एंटेरोकोकस। I hope complete hemolysis in one single page. I have given you a quick recap as well. With this, we mark the end of this session, guys. That is it. And इसी के साथ पूरा culture methods का जो topic था वो cover up होता है in 3 single videos. In 3 videos, I mean to say. So we have these all topics covered up right from the specimen से देख करके कौन सा media select करना है. And then we also did something that is called as the inoculation methods, then inoculation methods होगा आप लोग के, incubatory conditions for 4 different categories, and lastly colony morphology भी हम लोगों ने cover up करी with the details of something called as the hemolysis and all the different factors with certain examples with images, right? So that is it for this entire session. Again, with this we mark the end of this segment. So yep, thanks for watching. If you found this content useful, then do like, share and subscribe to my channel, which is AMS MBBS Lectures. So thank you so much again, and if you have any queries or how do you like the video, do let me know in the comments below. Till that time, bye bye.